Hello guys, how are you? So let us take some more questions from structure and bonding is what we are discussing. The question number 1 is, which of the following set of quantum numbers is correct for valence electron of rubidium? Okay, valence electron of rubidium. So rubidium, we know that it's number 37 and the electronic configuration will be, of course, 5s1. Am I right? Valency shell electronic configuration will be 5s1. So 5 is okay. Everywhere you can see 5. So this is correct. Then for s orbital, we know that there are 4 quantum numbers. The principal quantum number n, then azimuthal l, then magnetic m, and then our spin. Okay. So n is 5 principal quantum number, and because 5s, so for s l is 0, and if l is 0 then m will be also 0, alright, and s may be either +1 or -1. So this set is looking quite okay, I mean, okay. So A is correct answer. मुझे लगता है कि राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ए है. क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सेट जो है क्वांटम नंबर्स का वो रुबिडियम के लिए जो हमारा संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सही है. तो बाकी देखिए आप 5 0 1 आ गया तो एस के लिए 1 हो नहीं सकता है, इसी तरह से यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, 1 1 नहीं हो सकता है. तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई. ठीक है, क्योंकि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या है वो 5 है और 5s है, तो s के लिए l 0 होता है, m भी 0 हो गया और s प्लस या माइनस हाफ हो सकता है. तो यहाँ प्लस हाफ है तो भी ठीक है, माइनस हाफ होता तो भी सही हो जाता. तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 2 इज द इफेक्ट विच अकर्स between lone pair and pi bond. Between lone pair and pi bond. So between lone pair and pi bond, options are inductive. First, okay, what you do is you pause the video, you answer it, then you match. Okay, you don't just see and get the right answer. You should do yourself first and then you should match the answer. So inductive effect, electromeric effect, resonance effect, and hyperconjugation. Okay, so between lone pair and pi bond, so we have discussed resonance. Okay, and in resonance you can see there will be pi bond or a lone pair. Okay, pi bond and lone pair can resonate between two resonating structure. Even positive charge and pi bond can also resonate, or positive charge and lone pair can also resonate. So C will be correct answer. ओके, क्या है अभी पूछता है कि कौन सा प्रभाव एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और पाई बंध के मध्य कार्यरत होता है. तो कौन सा प्रभाव होता है अभी, रेजोनेंस प्रभाव होता है. ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में होता है ना, कि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या किसी ग्रुप के द्वारा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचना या अपने से दूर धकेलना क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसी रिएजेंट की उपस्थिति में काम करता है, जब रिएजेंट आता है तो काम करता है, अदरवाइज तो नहीं करता है. रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता ही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसमें लॉन पेयर और पाई बॉन्ड है ना, पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड. ठीक है, और लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज ये सब काम कर सकते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड और अनसेचुरेशन के मध्य हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के मध्य हो सकता है. तो राइट आंसर हमारा क्या है, रेजोनेंस प्रभाव है. Question number 3. Which statement is true with respect to Li2 plus and Li2 minus? It means lithium molecular positive ion, lithium molecular negative ion according to MOT. Okay, according to MOT we have to discuss. So lithium molecule if we consider, then we know in lithium the electronic configuration is 2s1. So in molecular orbital the 2 electrons will be there in bonding molecular orbital. Okay, this is this. So 2 electrons, am I right? 1 1. So this is bonding molecular orbital in lithium molecule. If it will be Li2 plus, then there will be 1 electron in bonding molecular orbital. So bond order will be half. Am I right? If it will be Li2 minus, okay, means one lithium is getting 1 extra electron, then 1 electron will go in anti-bonding molecular orbital, and bond order again will be half.
So bond order is half, it means both the species are existing. Okay, so let us see, both are unstable, no. Li2 plus is stable and Li2 minus is unstable, no. Li2 plus is unstable, Li2 minus is stable, no. This is not correct. Both are stable, of course both are stable because both are having what? Bond order half. So क्या है अभी कि लिथियम अणु का जो पॉजिटिव आयन है और जो नेगेटिव आयन है उनमें से किसके लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये पूछता है कि दोनों स्थायी हैं या दोनों अस्थायी हैं, एक स्थायी है दूसरा अस्थायी है, इस तरह के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आपने क्या बताया यहाँ पे, अगर लिथियम मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधित अणु कक्षक में होते हैं और उसका बंध क्रम क्या रहता है, अभी एक रहता है। अब जब Li2 प्लस बना है ना, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है तो यहाँ पे बंधित इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा भाई, और बंध क्रम क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आ जाता है Li2 माइनस के अंदर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग यानी विपरीत बंधी कक्षक में चला जाएगा और फिर भी क्या आएगा, बंध क्रम क्या आएगा भाई, बंध कोटि क्या आएगी, आधा। तो दोनों ही स्पीसीज आधे आधे बॉन्ड ऑर्डर वाले हैं, है ना, लेकिन Li2 प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ बॉन्डिंग में है, लेकिन स्टेबल तो दोनों होंगी, दोनों बनेंगी, तो बोथ आर स्टेबल, है ना, दोनों ही क्या है भाई, स्थायी हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीसीज हैविंग ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, स्पीसीज O2 we have seen there is sigma and pi, both bond are there, C2 2p2, so 4 electron in molecular orbital and all the 4 electrons will be occupied by pi molecular orbital, am I right? So there will be only pi bond in C2 molecule and 2 we know both are there, this does not exist, neither pi nor sigma. So क्या है क्वेश्चन, क्या है राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, ये बी। ठीक है, तो इसका ये आपका डी। क्या कहता है अभी यहाँ पे कि कौन सी जो ऐसी स्पीसीज है जिसमें से सिर्फ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर तो हमारा कार्बन अणु जो है वहाँ पे सिर्फ पाई बंद होता है, हमने देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। उसके बाद पूछता है कि द स्पीसीज विद हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखिए जो स्पीसीज हमने पढ़ी है डायटोमिक मॉलिक्यूल, उसमें एक चीज़ आपने देखी होगी कि जहाँ पे कुल टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्पीसीज ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है, त्रिबंध होता है इसमें। ठीक है, जैसे N2 था हमारा ट्रिपल बॉन्ड था, है ना, Cn माइनस है ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, क्योंकि 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, आपके एंटी बॉन्डिंग में जाता है। तो द स्पीसीज विद हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर विल बी NO, द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5 because the number of total electrons 8 plus 7 15, this one 8 plus 6 so 14, so this is what, okay, 14 electrons are there, so highest bond order will be for cyanide ion, am I right? क्या है भी क्वेश्चन कि किसमें हाईएस्ट बंध क्रम होगा, तो हमारा साइनाइड आयन जो है उसमें, क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और बंध क्रम 3 आता है। यहाँ पे भी डाई कितना आएगा भाई, 7 और 6 13 आएगा, तो नहीं होगा पूरा, डाई आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, और कम आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो Cn नेगेटिव। उसके बाद सेम बॉन्ड ऑर्डर हैविंग पेयर ईच, यानी बंध क्रम जिस पेयर का समान है वो हमें बताना है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये 3 होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और 8 और 7 इसका 2.5 हो गया, तो ये नहीं है भाई पेयर। सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है हमें, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 होता है, और ये कितना हो गया भाई, 7 7 14, तो इसका 3 हो गया, ये भी नहीं है भाई। साइनाइड में 3 होता है और CO में भी 3 होता है। ठीक है, क्योंकि 8 और 6 14 और 8 और 6 14, तो C इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अभी, C विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका isoelectronic species है। Okay, so isoelectronic species will have the same bond order. So these were some of today's question. ये थे आज के सवाल। मैं समझता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, इनके आंसर, इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के अंदर और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर। ये सारे सवाल मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में से उठाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। केमिस्ट्री की ओर को सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कर लें, और लाइक शेयर आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम कीजिए। हैव ए नाइस डे।